जर्मनी ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਰਨਾ ਆ ਹਿੰਦੀ में ਜਾਂ ਉਰਦੂ में बहुत सारे बहन भाई बहुत सारे ਭੈਣ ਭਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ हमारे ਭਾਜੀ ਕੋਈ पास ਇਦਾਂ ਦੀ सवाल ये है कि ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ पैदल ਜਿੱਥੋਂ चलने ਆਪਾਂ वालों ਇਹ की ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ क्रॉसिंग ਥਿਉਰੀ पर ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਰਦੂ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਆ ਲੰਗਾ ਫਾਰਸ਼ੂਲ ਕਾਰਡ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ WhatsApp ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਐਕਟਿਵ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ 25 ਤੋਂ 30 ਦਿਨ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲਾ ਲਵੇ ਸਿੱਖੇ ਤੇ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ YouTube ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਾ ਫਾਰਸ਼ੂਲ ਕਾਰਡ ਲਵ ਸਿੰਘ ਐਮ ਲਿਖ ਕੇ ਸਰਚ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਤੇ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇ ਸਟੋਰ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਂਡਰੋਇਡ ਫੋਨ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਐਪਲ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਐਪ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦਾ ਆ ਲੰਗਾ ਫਾਰਸ਼ੂਲ ਕਾਰਡ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫੋਨ ਮੈਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਟਾਲ ਆ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਓਪਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਬੈਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਆਪਣੇ ਮੈਨੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਖਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਲੰਗਾ ਫਾਰਸ਼ੂਲ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਓਪਨ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ WhatsApp ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੁਝ ਫੀਸ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਪਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਆਡੀਓ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਟਿਕ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਜਰਮਨ ਵਾਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਾਂ ਜਰਮਨ 'ਚ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਟਿਕ ਹਟਾ ਦੇਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਟਿਕ ਰਹਿਣ ਦੇਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਜਰਮਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਜਰਮਨ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਥੱਲੇ ਉਰਦੂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਧੀਆ ਇਬਜਿਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਵਧੀਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੰਟੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਰਲਿਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਈਮੇਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੀਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਡੀਓ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਡੀਓ 'ਚੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਆ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਲ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਲ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦਾ ਲੋਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਟ ਸ਼ੁੱਡ ਯੂ ਡੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਬਾਈ ਡੈਫੀਨਿਸਿਵ ਡਰਾਈਵਿੰਗ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਰਮਨ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸੌਰੀ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿੰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਥੋਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆ। ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं ऑडियो भी चला के दिखाना है। सवाल ये है कि पीछे से तसादुम की वजूहात क्या हो सकती हैं और हमारे पास यहाँ पर 3 ऑप्शन हैं। पहली ऑप्शन है कि सड़क पे जो सामने वाली गाड़ी जिसके पीछे आप चल रहे हैं, आप बहुत करीब ड्राइविंग कर रहे हैं। मुनासिब फासला बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है और अगर आप मुनासिब फासला बरकरार नहीं रखते हैं तो तसादुम का खदशा पैदा हो सकता है, यानी कि आपकी गाड़ी सामने वाली गाड़ी से टकरा सकती है। और दूसरी ऑप्शन है गफलत। गफलत एक बहुत बड़ी वजह बन सकती है
अब आप अगर गफलत करें तो भी, और सामने वाला या पीछे वाला गफलत करे तो ये भी तसादुम का बायस बन सकता है। और हमारे पास तीसरी ऑप्शन है कि गैर मतवक्को तौर पर बहुत शदीद ब्रेक लगाना। होता ऐसा है, जब आपने मुनासिब फासला बरकरार रखा हो तो ब्रेक लगाई जाए तो पीछे वाला भी और आगे वाला भी अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन अगर आप उम्मीद ही ना कर रहे हो कि आगे वाला ब्रेक लगाने वाला है और मुनासिब फासला भी बरकरार ना रखा जाए तो यकीनन ये तसादुम का बायस बन सकता है। और इसके सही जवाब में तीनों ऑप्शंस आती हैं। ना गफलत की जा सकती है, ना सामने वाली गाड़ी के बहुत करीब ड्राइव किया जा सकता है, और अगर गैर मतवक्को तौर पर आप या सामने वाली ब्रेक लगाए तो ये तीनों ऑप्शंस तसादुम का बायस बन सकती हैं। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਆਡੀਓ ਆ ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਆ, ਸਮਝਾਇਆ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਸਹੀ ਆ ਦੇ ਜਵਾਬ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰਤੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਫੇਵਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸੇਵ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖ ਲੈਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜਦੋਂ ਆਲ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ 40 ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, 50 ਕੀਤੇ, 100 ਕੀਤੇ, ਹਨਾ 1155 ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲਤ ਹੋਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 2 ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਗਲਤ ਕਰਕੇ ਸੇਵ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ 2 ਆ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਵੀਡੀਓਸ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਟੋਟਲ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਦਿਹਾੜੀ 40 50 60 ਜਿੰਨੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਆਊਗਾ ਜਰਮਨ ਦਾ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥਿਓਰੀ ਦੀ ਦੇਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਣੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਰਮਨ ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਜਦੋਂ ਬੈਠ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 60% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਐਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਤੇ ਉਰਦੂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਸ਼ੋ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਜਰਮਨ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟਿਕ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਆਂਗੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਆਡੀਓ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਾਂ ਜਰਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ मैं जरा कोशिश करूँगा अब दोबारा इस बात को दोहराने की उर्दू में, जो बहन भाई जिनको पंजाबी समझ में नहीं आती वो उनके लिए। ठीक है जी। उर्दू और हिंदी समझने में बोलने में थोड़ी सेम ही है, इसलिए उन सब बहन भाइयों के लिए जो उर्दू और हिंदी में इस ऐप को समझना चाहते हैं। सो सबसे पहले हमने इस ऐप को लंगा फाशुल कार्ड लिख के अपने प्ले स्टोर से, जो बहन भाई एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं और जो बहन भाई अपना एप्पल के फ़ोन यूज़ करते हैं वो अपना ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है। डाउनलोड करके आपने उस एप्लीकेशन को जो है इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपके फ़ोन में इस तरह से कुछ इसकी सिंबल है, इसकी निशानी है, और इसको जब आप प्रेस करोगे तो इस तरह से वो खुल जाएगी। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आप कोई चीज़ को ओपन नहीं कर पाओगे क्योंकि ये ऐप जो है डाउनलोड तो कर लिया, इंस्टॉल कर लिया, लेकिन एक्टिव नहीं होगा। उसके लिए आपको इनके प्रोवाइडर से जो है ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर दिया जाएगा। मैं उनका व्हाट्सएप नंबर जो है ऊपर मेंशन भी कर देता हूँ। वैसे तो इसमें व्हाट्सएप नंबर उनका है। ठीक है जी। तो जब आप इसको उनसे ये एक्टिव करवा लेंगे अपनी एप्लीकेशन तो आप इसको बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं। इसमें टोटल जो हैं ऑल क्वेश्चंस 1155 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है जी।
और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है, जिन भाई बहनों ने उर्दू या हिंदी में करना है यहाँ पर टिक कर लें हिंदी पे या फिर उर्दू पे, ठीक है जी। करके आपके जो सवाल हैं वो की ट्रांसलेशन उसके साथ साथ आएगी और ऑडियो भी आएगी, मैं दिखाता हूँ आपको। और यहाँ पर अगर जो बहन भाई इसको सिर्फ जर्मन में या इंग्लिश में करना चाहते हैं तो यहाँ से ये टिक हटा दें, तो वो अपना इसको सिर्फ जर्मन या अपना इंग्लिश में कर सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन ये ऐप क्योंकि बनाई गई है उन बहन भाइयों के लिए जिनको प्रॉब्लम आ रही है जर्मन लैंग्वेज में अपना थ्योरी सीखने की, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखिए ये मेरा लंगा फाशुल कार्ड, मेरी ईमेल आईडी है और नीचे एक्टिवेटेड लिखा हुआ है। उन क्योंकि लंगा फारशुल कार्ड जिन्होंने बनाया है उन्होंने मुझे ये अकाउंट एक्टिव करके दिया है ताकि मैं आपके साथ इसको एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है जी। तो वैसे मुझे तो पर्सनली नहीं चाहिए क्योंकि मुझे तो काफ़ी साल हो गए, लाइसेंस है मेरे पास, लेकिन यहाँ पर हमने कर लिया। इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि आप देखिए ऑल क्वेश्चन में सबसे पहले चले जाते हैं, ठीक है जी। ऑल क्वेश्चन में जाते हैं तो डाटा जो लोड हो रहा है। लोड होने पर ये देखिए आप यहाँ पर वो सवाल जो है ऊपर इंग्लिश में लिखा हुआ है, यहाँ हम इसको अगर जर्मन में करना चाहते हैं तो जर्मन में कर सकते हैं और साथ में उसका तर्जुमा जिसको आप बोलते हैं उसकी ट्रांसलेशन जो की गई है उर्दू में की गई है, क्योंकि हमने उर्दू सेलेक्ट किया था। अगर हम ऊपर हिंदी सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो है हिंदी आ जाएगा, ठीक है जी। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो उसके लिए भी हम वापस चले जाते हैं और यहाँ उर्दू के जो स्विच है उस पर हम हिंदी को कर देते हैं, ठीक है जी। और अब जब हम इधर जाएंगे तो ये डाटा दोबारा से लोड हो रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर जर्मन से जो है हिंदी में इसकी ट्रांसलेशन है और इसकी मैं ऑडियो भी सुनाता हूँ आप लोगों को, सुनिएगा। सबसे पहला सवाल ये है कि डिफाई ड्राइविंग से आपको क्या समझना चाहिए। डिफाई ड्राइविंग मतलब कि डिफेंसिव ड्राइविंग। हमारे पास यहाँ पर 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। सबसे पहला ऑप्शन है कि अपने हकूक पर इसरार नहीं करना, यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम ठीक होते हैं लेकिन जो दूसरा बंदा सड़क पर ड्राइव कर रहा है उसकी दिमागी सेहत मुतासर हो सकती है, या वो किसी इमरजेंसी में हो सकता है, या वो किस सूरत हाल में है हम नहीं जानते। और जैसे हम कहते हैं कि इंसान है, इंसान गलती कर सकता है, तो हम उसको एक मार्जिन दे सकते हैं, यानी कि हम हक पर हैं मगर उसके बावजूद हम अपने हक पर इसरार ना करें। ऑप्शन नंबर 2 है कि एहतियात के तौर पर दोराहे पर रुकें, यानी हर दोराहे पर रुकें और उसके बाद आगे बढ़ें। और ऑप्शन नंबर 3 है कि दूसरों को गलतियों की इजाज़त देना चाहिए, यानी कि जैसा कि हमने पहले भी बात की कि इंसान है और इंसान से गलती सरजद हो सकती है। जितने लोग सड़क पे मौजूद हैं वो किसी ना किसी जगह जाना चाहते हैं और कोई भी गलती नहीं करना चाहता, लेकिन गलती अगर हो जाए तो उसे मार्जिन देना चाहिए। और इसका सही जवाब है अपने हकूक पर इसरार नहीं करना और दूसरों को गलती की इजाज़त देनी है। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि बहुत ही अच्छी और बहुत ही क्लियरली ऑडियो में समझाया गया है और बहुत ही इजीली मुझे लगता है कि सबको समझ में आ सकता है। ऊपर हम इसको जर्मन से हिंदी में या फिर इंग्लिश से हिंदी में करना चाहते हैं या फिर इंग्लिश से उर्दू करना चाहते हैं, जर्मन से उर्दू करना चाहते हैं, वो हम पे डिपेंड करता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर आ गया, मान लो मैंने ये सवाल यहाँ पर गलत कर दिया, ठीक है जी, वो पिंक हो गया, तो उसको हम इधर सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अभी हम वापस चलते हैं। इधर है टोटल जो है इसमें 1155 क्वेश्चन हैं, सवाल हैं, ठीक है जी। तो मान लो हम दिन में 40, 50 या 100 सवाल करते हैं। वैसे तो जिन्होंने प्रोवाइड किया है ये एप्लीकेशन वो बोल रहे हैं कि एक बंदा अगर 25 से 30 दिन निकाले और इसको डेली थोड़ा थोड़ा सीखे तो वो बिल्कुल तैयार हो सकता है अपने एग्ज़ाम के लिए, ठीक है जी। तो हम यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया हम फेवरेट पे जाते हैं, तो यहाँ पर वो सवाल सारे आ जाएंगे। मान लो मैंने दिन में 40 सवाल किए थे, उसमें से 20 गलत हो गए मुझसे, तो वो सारे 20 यहाँ पर सिलेक्ट किए हुए थे तो वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो उसको मैं दोबारा जो रिपीट कर सकता हूँ, रिवीजन कर सकता हूँ। तो इस तरह से वो फेवरेट में होंगे, ठीक है जी। मान लो एक बार हमने पूरे ही 1155 सवाल पहले कर लिए और उसके बाद हम जितने सवाल हमसे गलत हुए थे वो जो हमने सेलेक्ट किए थे पिंक वाले, वो सारे फेवरेट में होंगे, ठीक है जी। उसके बाद इधर वीडियो वाले क्वेश्चन भी हैं
वो भी हमें शो करते हैं। वीडियो बहुत क्लियरली आती है, ऑडियो भी है और सारा कुछ जर्मन में भी है, हिंदी में, उर्दू में, सब कुछ है। ठीक है जी। तो इस तरह से हम इसको भी देख सकते हैं। टॉपिक शीट्स हैं, इस पे आप देख सकते हैं। टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, ट्रैफिक साइंस हैं, राइट ऑफ वे, प्रायोरिटी जिसे हम रेस्ट फॉर लिंक्स कहते हैं जर्मनी में, उसके मुतालिक जितने भी सवाल हैं सारे उनका जो है वेरवा दिया गया है। ठीक है जी। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और यहाँ पर एग्ज़ाम्स हैं। ठीक है जी। आप इसमें भी जैसे एग्ज़ाम उधर आएंगे बिल्कुल वैसे ही तैयार किए गए हैं। इधर देखो एक से लेकर 30 सवाल हैं इसमें। तो इसमें एग्ज़ाम में आपको है जो सबसे बड़ी बात, इंग्लिश जहाँ जर्मन में ही आएगा, क्योंकि जब आप पूरा सीख लोगे, तैयार हो जाओगे, तो आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे वहाँ पर अपने डिस्प्ले पे आपकी कंप्यूटर पे सिर्फ इंग्लिश और जर्मन में ही आ सकता है, बाकी हिंदी और उर्दू में उधर उपलब्ध नहीं होगा। इसलिए ये एप्लीकेशन आपके सीखने के लिए बनाई गई है, ना कि उधर जाके फिर दोबारा हिंदी उर्दू में पढ़ने के लिए। आपने बिल्कुल घर से तैयार हो जाना है, इस एग्ज़ाम को सीखते रहना है। जब देखेंगे, अभी वापस चलते हैं हम, तो जैसे हम वापस चले गए तो इधर चलते हैं फाइनल एग्ज़ाम पे। जब इधर आपका 60% शो होने लग जाएगा कि आपने एग्ज़ाम प्रोसेस 60% तक पहुंच गए हैं, तो फिर आपको जो है ये आप जो है उसके लिए तैयार हो जाएंगे फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा ऐप तैयार किया है अपना लंगा फारशूल कार्ड। तो ये जो लड़के हैं अपने जिन्होंने तैयार किया है वो जर्मनी में बर्लिन में रहते हैं। उनका जो व्हाट्सएप नंबर है वो भी मैं इसमें मेंशन कर देता हूँ। तो अपने बहन भाइयों के लिए, ख़ास करके जिनको उर्दू आती है, जो हिंदी में कर लेते हैं, और उनका कहना है कि पंजाबी में भी वो बना रहे हैं, तो जल्दी ही पंजाबी वाला भी अपना जो है ऑप्शन इसमें मेंशन हो जाएगा। तो वैसे तो बहुत सारे पंजाबी बहन भाई जो हैं उनको भी हिंदी समझ में आ जाती है, तो इसलिए ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है ये वाला ऐप आप सबके लिए। तो इस ऐप को ज़्यादा से ज़्यादा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बहन भाइयों तक पहुँचाएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बहन भाइयों को इसका फ़ायदा, इसका लाभ मिल सके। और इस वीडियो को अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक दे दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जो इसका बेल आइकन है उसको दबा लीजिए, ताकि जो हमारी आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो लास्ट में जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, अगर कोई गलती हो जाती है जाने अनजाने में, जे कोई गलती हो जाती है मेरे कोलों, तो ਤੁਹਾਡਾ ਲਵ ਸਿੰਘ ਅਹਿਮਦ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਲਾਮ, ਨਮਸਤੇ, ਆਦਾਬ।